तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम दो चीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एक है एक कोई भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हैं, और आज दूसरी चीज हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम हेडर फाइल का यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम फंक्शन का ऐसे यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे ओपन ब्रेसेस के साथ हम यहाँ पे इंट नंबर कॉमा फैक्टोरियल, ठीक है ना, फैक्टोरियल इक्वल्स 1। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद इक्वल 1 का मतलब कि अभी हम यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप करेंगे, तो अभी हमने ऐसा यहाँ पे 1 ले लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पे लेना भूल गए वो है आई, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप प्रिंट एफ ऐसा फंक्शन का यूज करेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे एंटर ए नंबर। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप कोई भी एक नंबर का यूज करेंगे मतलब कि जिसका आपको फैक्टोरियल चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप प्रिंट एफ के बाद आपको पता है हम स्कैन एफ करते हैं, तो परसेंटाइल डी कॉमा एंड नंबर। ठीक है, अब उसके बाद हम एज अ कंडीशन फॉर का यूज कर रहे हैं, तो हम आई इक्वल्स 1 सेमीकोलन I should not greater and equal to number। ठीक है ना, जो भी हम यहाँ पे नंबर यूज करेंगे सेमी कॉलन यूज करके आई प्लस प्लस आप यहाँ पे वैल्यू को डाल देंगे। ठीक है ना, आज की वैल्यू को आप यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो फिर अब उसके बाद हम लिखेंगे फैक्टोरियल इक्वल्स फैक्टोरियल इनटू 1 आई, सॉरी। ठीक है, आई क्या है हमारी यहाँ पे वैल्यू, जो हम यहाँ पे पुट करेंगे वो इससे मल्टीप्लाई करेगा, हमें एक फैक्टोरियल देगा यहाँ पे सॉल्व करके। ठीक है, तो अब उसके बाद हम प्रिंट एफ एज अ फंक्शन का यूज करेंगे, जिसमें हम परसेंटाइल डी, वी विल यूज परसेंटाइल डी फैक्टोरियल विल बी इक्वल्स टू परसेंटाइल डी और मॉड डी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, एंड वी विल बी यूजिंग हियर न्यू लाइन okay, then as you will be give after a double inverted comma a comma, okay, then you will be use number comma factorial, okay, and comma I, then you will be go to the next line and close the program. So here our program has done, we have done the program. Now we should running the program, yeah, it runs. So we will be here entering 5 should be factorial 120. Okay, now we are going to find simple interest. Okay, as you are knowing, the formula of simple interest is P into R into T divided by 100, means principal into percentage, rate of percentage into time in years, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो फिर हम उसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। सो नाउ हेयर वी विल बी यूजिंग एज अ फ्लोट। ओके, सो योर एनी नंबर कैन बी इन decimal form, so we are using here float. Then you will be text P comma R comma T. Okay, then simple interest you will write, simple interest. Then you will apply a semicolon to close it. Now you will be firstly writing printf, you will be taking as a function printf, then you will be writing enter a principal, enter principal. Then applying a semicolon and then goes to next line.
So after, as you know, after printf we are using here scanf as a function. Okay, so we are here using percentile f as a character of float. Okay, and p as a principal, semicolon close and go to next line. So we will be here again writing texting printf as a function. So here we will text rate enter rate in percentage. Okay, so here you will be use a semicolon and then goes to next line. Okay, now you will be use scanf as a percentile f and r. Why we are using r and p? Because in the functions we are in the every function we are writing principal, so we will be using a small letter p. Okay, in scan, what to be scanned, principal or a rate. Okay, so now moving to another text, so we will be using printf as a function again and again. 3 times we have used in this formula because the formula is generating by 3 times. Now enter time in years. Moving to next line, you will be doing scanf taking as a function and percentile if comma and t as a time. Okay, now moving to next here. ठीक है ना, अभी तक तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि अभी हमें हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले से हम जनरेट करेंगे. हमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है अगर उसका हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हम कैसे करेंगे, तो अभी हम वो कर रहे हैं. ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ आपको बता दिया कि आप यहाँ पे पहले प्रिंसिपल को एंटर करेंगे और यहाँ पे हम पी ले रहे हैं और स्कैन एफ में. ठीक है ना, स्कैन कैसे करना है, हमें प्रिंसिपल को करना है, तभी जाके तो हमें कोई एक वैल्यू मिलेगी. फिर उसके बाद आप प्रिंट करेंगे रेट को परसेंटेज में. फिर उसके बाद प्रिंट एफ एज अ फंक्शन दोबारा लेके आप ईयर्स को भी यहाँ पे टाइम को भी ईयर्स में प्रिंट करेंगे. ठीक है ना, स्कैन एफ में. अब उसके बाद फिर आप यू विल बी टेकिंग सिंपल इंटरेस्ट equals p into, you can also choose like this, p into r, or you will be using, you can also use the brackets. Okay, and to close the bracket and divided by 100, p into r into divided by 100. Then you will be using semicolon over here. Okay, then you will be taking as a function printf again for the summarizing the whole text you have written over here, whole program you can say. Okay, so printf's simple interest is percentile f or you can use comma simple interest. Okay, then you will be using semicolon to close the whole programming. Then at the end we are using close braces to close the whole program. Okay, now our programming has all over done over here. So now we will be running it. Oh, some default is over here, so we should check what is the default. Actually our mistake is here. देखिए हमें जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, हमें उसको एक साथ लेना है.
यहीं पे हमारी मिस्टेक हो जा रही है सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि कंप्यूटर उसी भाषा को समझता है जो उसको समझनी चाहिए, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट को अभी आप एक साथ में लेंगे और एक यहाँ पे आप न्यू टेक्स्ट लाइन डाल देंगे, ठीक है। तो अब इसे रन करते हैं, तो ये रन हो गया। तो अभी मेरे को यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मुझे चाहिए, जैसे मैं प्रिंसिपल 6 डाल देता हूँ और परसेंटेज हम 8 रख लेते हैं, ठीक है। और टाइम हम डाल देते हैं 2 ईयर्स। तो अभी हमें यहाँ पे ये प्रोसेस करके सिंपल इंटरेस्ट दे जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज के इस पार्ट 6 वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट 7 वीडियो आएगी, तो तब उसमें हम कुछ नई वीडियोस को भी, नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।